This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you daily highlights of the 38th National Games 2025. 38th National Games Uttarakhand. Hello and welcome to the daily highlights of the 38th National Games. You're with Shaurya Chaudhary. Over 10,000 athletes are vying for sporting glory across 8 districts and 12 venues of the picturesque state of Uttarakhand in more than 30 core sports in this prestigious multidisciplinary event. Today, on the second full day of action, medals galore were on offer for the sportspersons who have converged here in games ranging from weightlifting to aquatics. Let's dive right in. Shooting has been India's go-to sports on the global stage for years in their hunt for medals. And with some of the country's top shooters taking part in this year's National Games, all eyes have been on the Trishul shooting range in Dehradun. Shibu George tells us who hit the mark on the second day of action. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के त्रिशूल शूटिंग रेंज पर आज 2 स्वर्ण पदक निशाने पर थे। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के अनीश ने 31 शॉट्स निशाने पर मारे और अपने राज्य के लिए शूटिंग का पहला स्वर्ण पदक जीता। ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, हरियाणा के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल के साथ ओपनिंग शुरुआत करना। विजयवीर सिद्धू थे ओलंपियन, दोनों हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अच्छे टीममेट्स भी हैं। मेरा गुजरात नेशनल गेम्स में गोल्ड था, गोवा में विजयवीर का गोल्ड था, अभी वापस से मेरा गोल्ड है, तो इतना चलता रहता है। मैं बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस। रजत पदक एसएससीबी के गुरप्रीत सिंह को मिला और ओलंपियन विजयवीर सिद्धू को कांस्य पदक से संतुष्ट होना पड़ा। विजयवीर ने कहा कि अनीश और उनके बीच एक स्वीट राइवलरी है। एक अच्छा एक बॉन्डिंग है हमें, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड भी सेम है, तो साथ में ट्रेनिंग करते हैं, फिर साथ में कंपटीशन होता है। एक अच्छी राइवलरी है हमारी लेन पे, बट जब भी हम लेन के बाहर होते हैं तो एक अच्छी दोस्ती है हमें। उधर महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में रमिता क्वालिफिकेशन के अपने फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाई और उन्हें कांस्य पदक से संतुष्ट होना पड़ा। तमिलनाडु की नर्मदा नितिन राजू ने शुरू से ही अपनी बढ़त बनाए रखी और स्वर्ण पदक अपने नाम की। It was pretty exciting. My heart rates were high, obviously. Even in match and in finals, it was a good match. It was a tough fight also. Everyone fought really well. महाराष्ट्र की युवा निशानेबाज आर्या राजेश बोरसे अपनी रजत पदक से काफी खुश थीं। बहुत बढ़िया फील कर रहा है, प्राउड मोमेंट मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, ऑफ कोर्स, और स्टेट के लिए भी। नेशनल गेम्स मेरे लिए हमेशा सपना रहा है कि एक बार नेशनल गेम्स का मेडल। लास्ट टाइम मेरा मिस हुआ था नेशनल गेम्स गुजरात में जो हुआ था, वो बहुत पास से मेरा मिस हुआ था। इस बार मेडल लेके बहुत अच्छा लग रहा है। आप ओलंपियंस के साथ शूट कर रही थी, प्रेशर था या मजा ले रही? एक्चुअली प्रेशर तो नहीं था। स्टार्टिंग में 1-2 शॉट प्रेशर रहता है, जब तक पैलेट्स राइफल से रिलीज नहीं हो रही है तब तक। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एट द एंड सब प्लेटफॉर्म पे एक ही खड़े हैं, तो सब इक्वल हो जाते हैं, सब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में रुद्रांश पाटिल, अर्जुन बबूता और संदीप सिंह जैसे दिग्गज निशानेबाज पदक पर निशाना साधेंगे। The intriguing martial arts sport of wushu began in right earnest yesterday. Today, 6 gold medals were on the line. Khurshid Ahmed kept a close eye on the proceedings by the mat. It was the second day of wushu competition being held at Kanchanjunga Hall of Maharana Pratap Sports College in Dehradun, and 6 numbers of gold medals were at stake in Taolu form of wushu. The day's proceeding began with Taizikwan male event where H. Karamjit Sharma of SSCB clinched the gold medal. In the female category of this event, Oinam Malangambidevi pulled off a marvelous show and thus increased the gold medal tally of Manipur in Wushu in this 38th National Games to 4. In the Wushu event of Talo Wushu, there were 10 competitors who were fighting for the ultimate glory in male. It was Achom Tapas of host state Uttarakhand who had the last smile. Here is Tapas. ये मेरा पहला senior national है, my first senior debut, and I'm really grateful that it's my first senior national and I got a gold medal in this national games. It's really a tremendous feeling to take part in this national games, and yeah, it was really a nice one. About my preparation, मैंने 6 हफ्ते पहले से मैंने full तैयारी इसमें focus किया. I train about 3 hours in morning and 4 hours in the evening. My ultimate goal is to take a gold medal in Asian Games and to bring pride for India. In females Daushu event, showing some brilliant skills with her sword, Naiman Wangshu of Arunachal Pradesh got the gold medal. This is the 3rd consecutive goal for Wangshu in National Games. वैसे हम बहुत नर्वस था कि अरे 2 बार ले लिया, तो अभी 3rd टाइम भी हमको वो अचीव करना है, तो अभी वो कंप्लीट हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट अपकमिंग एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो लास्ट ईयर जो चाइना में हुआ था, हमें वहाँ जाने नहीं दिया वीज़ा इशू के वजह से, तो नेक्स्ट जो आने वाले उसमें हम तो जाने ज़रूर मिलेंगे, जो जापान में हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं।
The other two gold medal events of the day were Nandao male and female. In Nandao male, Yash Namdev of Madhya Pradesh got the gold, and in Nandao female, Regina Tamang of Delhi clinched the gold medal. It's time to visit scenic Haldwani for a change of scenery and sports. Moa Marim Song has been keeping track of the strokes and dives on the pool at the Manas Khand Tarantal amidst a shower of medals. He tells us who mastered the waves in aquatics. Another thrilling day in aquatics at the Indira Gandhi International Stadium swimming pool in Haldwani with 7 gold medals in the offering. In the women platform diving event, Palak Sharma from Madhya Pradesh won the gold, while last year's winner Isha Wagmode from Maharashtra had to settle for silver. थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने सिल्वर जीता, पर इट्स ओके। अभी और 2 इवेंट्स है मेरे, तो उसमें मैं बेस्ट देने का ज़रूर ट्राई करूँगी और मैं मेरा बेस्ट दूंगी। An overjoyed Palak Sharma speaking after winning the gold. I'm feeling really good and it's an honor to represent Madhya Pradesh and won gold for Madhya Pradesh. It's an honor. In swimming, a new national record was set in the men's 1,500 meter freestyle event. Kushagra Rawat of Delhi beat his own time set last year in Goa to win the gold, stopping the clock at 15 minutes 37.79 seconds. In the women's 400 medley event, Sanvi Deshwal of Maharashtra won the gold, Srinidhi Nathasan of Tamil Nadu won silver, and Bhavya Sachdeva from Delhi won the bronze. Tamil Nadu's S. Dhanush won gold in the men's 200 meter breaststroke, while Harshita Jayaram from Kerala took gold in the women's category. The 4x100 meter medley was as exciting today. The men from Karnataka won the gold, Tamil Nadu finished second, and Maharashtra third, while Odisha edged out Maharashtra to win the women's gold. Staying in Haldwani, where KD Shukla had a busy job shuttling between the volleyball court at the Shivalik Hall and onto the open roads for road cycling. Here's his report. रुद्रपुर में साइकिलिंग प्रतियोगिताओं का आगाज इंडिविजुअल टाइम ट्रायल के रोड साइकिलिंग इवेंट के साथ हुआ। पुरुष वर्ग में 26 जबकि महिला वर्ग में 29 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग के लिए 40 किलोमीटर की रोड साइकिलिंग में कर्नाटक के नवीन थॉमस जॉन ने स्वर्ण पदक जीता। हैप्पी सैटिस्फाइड, ये मेरा 4th गोल्ड मेडल है इस इवेंट में। केरला में पहली बार 2015 में, फिर गुजरात में, गोवा में लास्ट ईयर, और नाइस टू डिफेंड द टाइटल ऑलवेज। पुरुष वर्ग के सभी 26 खिलाड़ियों में 38 वर्षीय नवीन सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी थे। I would say it's my passion for the sport. I just like riding my bike, और competition एक आउटलेट है, वो प्रैक्टिस और that passion को थोड़ा recognition मिलने के लिए, बस इतना ही है। Keep riding my bike a lot, 25,000 kilometers a year. रजत पदक अपना पहला नेशनल गेम्स खेल रहे सर्विसेज के दिनेश कुमार को मिला। दिनेश लगभग 16 सेकंड से पिछड़ गए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट मेरा ये नेशनल गेम्स में मेडल है। मैं 10 सेकंड बाद में स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, और मेरा साइकिल का थोड़ा इशू भी हो गया था और हैंडल खुल गया था, उसकी वजह से थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी हुआ। कांस्य पदक पंजाब के हर्षवीर सिंह सेखों को मिला। मैं पहले स्केटिंग करता था। नवीन जॉन बहुत ही सालों से कर रहे हैं। मेरा और उनका 12 साल का एज डिफरेंस है, और डेफिनेटली वो स्ट्रांग भी हैं और एक्सपीरियंस आल्सो मैटर्स। वहीं महिला वर्ग में महाराष्ट्र की पूजा बाबन ने 45 मिनट और 33.374 सेकंड का समय लेकर 30 किलोमीटर के इस इवेंट में स्वर्ण हासिल किया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने अपना बेस्ट दिया, तो अच्छा लग रहा है। जिन भी लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया अभी पास्ट डेज में, कुछ जहाँ पे मैं कंपटीशन में अपना बेस्ट नहीं दे पा रही थी, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। स्पेशली माय फैमिली, कोचेस, माय ब्रदर्स एंड माय टीम। राजस्थान की मोनिका मात्र 15 सेकंड से पीछे रह गई और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। सेटिस्फाई तो नहीं हूँ। पहले नेशनल गेम्स में मैं पोजीशन में थी और मेरा साइकिल का चेन टूटने की वजह से मुझे रेस से बाहर किया। दूसरे नेशनल गेम्स में मेरा गोल्ड था और ये मेरा तीसरा नेशनल गेम्स है जिसमें मेरा सिल्वर है, क्योंकि मैं 1 महीने से बीमार थी। पर ठीक है, मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, पर मैं खुश हूँ। कर्नाटक की मेघा गोगाड ने अपना पहला नेशनल गेम्स खेलते हुए कांस्य पदक हासिल किया। मेरा ये पहले नेशनल गेम से ब्रॉन्ज मेडल मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कोशिश करूंगी नेक्स्ट नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेने का। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव और नेशनल गेम्स की टेक्निकल कंडक्ट कमेटी के सदस्य श्री मनिंदर पाल सिंह ने कहा कि ऐसे खेलों के आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फिट इंडिया का जो एक सपना है, अलग स्तर पे ले जाने का जो एक दायित्व उठाया है, वो सब एक अलाइन होता है। जब ये कंपटीशन इतना फेयर्स होगा
होगा तो वो इंटरनेशनल लेवल का ही कंपटीशन होगा। तो इससे खिलाड़ियों को एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे जो टैलेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए उनको कोई नहीं रोक सकता। वहीं रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में चल रहे वॉलीबॉल के पूल मैचेस में महिला वर्ग में केरल ने तमिलनाडु को 3-2 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग में केरल ने हरियाणा को 3-1 से और सर्विसेज की टीम ने कर्नाटक को 3-1 से शिकस्त दी। Let's get back to the capital city of Dehradun and again to the Maharana Pratap Sports College, the venue for many of the most important sports at this year's games. At the Monal Hall, weightlifters were striving for medals in both men's and women's disciplines. Mahendra Singh Lalas fills us in. देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से वेट लिफ्टिंग की स्पर्धाएं शुरू हुई। महिलाओं के 45 किलो भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता केरल की सूफना जास्मीन ने। उन्होंने स्नैच में 72 और क्लीन और जर्क में 87 किलो वजन उठाया। Myself Sufna Jasmine from Thrissur in Kerala. I'm the first gold medalist from Kerala in weightlifting 45 category. I'm so happy over the achievement. इस वर्ग का रजत पदक महाराष्ट्र की दीपाली गुरसले और कांस्य मध्य प्रदेश की रानी नायक ने जीता। महिलाओं की 49 किलो भार श्रेणी का सोने का तमगा छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने गले में पहना। मैं अपना जो टारगेट था वो फिक्स करके आई थी। मैंने बोला कि मुझे इतना करना है तो करना है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। उन्होंने स्नैच में 85 और क्लीन और जर्क में 106 किलो वजन उठाया। सिल्वर मेडलिस्ट रही महाराष्ट्र की सारिका शिंगारे और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हरियाणा की कोमल कोहर। पुरुष वर्ग में 55 और 61 किलो के वर्गों के स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ के विजय कुमार ने 55 किलो वर्ग में स्नैच में 107 और क्लीन और जर्क में 143 किलो वजन उठाया। क्लीन और जर्क में उन्होंने राष्ट्रीय कीर्तिमान की बराबरी की। संघर्षों से निकलकर राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं विजय कुमार। पुरुषों के 55 किलो वर्ग का रजत महाराष्ट्र के मुकुंद संतोष आहेर और कांस्य पदक महाराष्ट्र के ही आकाश श्रीनिवास गौड़ ने जीता। आज की आखिरी स्पर्धा थी पुरुषों की 61 किलो वर्ग की, जिसके विजेता बने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के ऋषिकांता सिंह। उन्होंने स्नैच में 122 और क्लीन और जर्क में 151 किलो वजन उठाया। महाराष्ट्र के संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक और उन्हीं के राज्य के शुभम तानाजी तोड़कर ने कांस्य पदक जीता। क्या कहते हैं भारतीय भारोत्तोलन के द्रोणाचार्य पाल सिंह संधू। जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड ने बहुत मेहनत की है और जो स्टैंडर्ड भी है वो अच्छा हो रहा है। इस कैटेगरी में लिफ्टिंग हुई है बड़ी अच्छी हुई है। हम सोचते हैं कि जो ये बच्चे ऐसा करते रहे और देश के लिए भारत मेडल आए। पाल सिंह जी, एक चीज जो अच्छी देखने में आ रही है कि अब लिफ्टर्स अरुणाचल से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं। वेट लिफ्टिंग अब बहुत सारे राज्यों में पॉपुलर हो रही है। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट की है, ये स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे जमाने में नहीं थी। जो मैं सोचता हूँ उस टाइम ये पॉलिसी होती तो शायद हम और भी मेडल आ सकते थे बाहर से। The badminton competition has generated attraction both due to the quality of play and the quality of players on show. Shahid Azmi had a bird's eye view of the flying shuttle at the parade ground. बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के लीग मैच आज समाप्त हो गए हैं। कल महिला पुरुष दोनों वर्गों के चारों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। आज दो महत्वपूर्ण लीग मैच खेले गए, जहां पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ का सामना अरुणाचल प्रदेश से हुआ, वहीं महिला वर्ग में गुजरात का मुकाबला कर्नाटक से खेला गया। अपना पहला लीग मैच हार चुकी गुजरात के लिए करो या मरो का दिन था। उसने आज कल की हार से सबक लेते हुए एग्रेसिव अंदाज में खेलते हुए कर्नाटक को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। वहीं पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ ने एक तरफा अंदाज में अरुणाचल प्रदेश को 5-0 से हराकर न सिर्फ सेमीफाइनल खेलने का मौका हासिल किया, बल्कि अरुणाचल प्रदेश को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैच के बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी रौनक चौहान से हमने बात की। टीम एक साथ खेली, सबने अपना बेस्ट दिया, तब जाके हम लोग दोनों मैच जीते। सबने अपना एफर्ट्स डाले और सब लोग चेयरिंग में भी हेल्प करते रहे और सबने अपना मैच अच्छे से खेला, सब जीते, तभी हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंच पाए। चलते चलते आपको बता दें, कल टीम इवेंट के चारों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे, जहां महिला वर्ग में असम का सामना उत्तराखंड से, वहीं हरियाणा का मुकाबला गुजरात से होगा, जबकि पुरुष वर्ग में कर्नाटक छत्तीसगढ़ से और मेजबान उत्तराखंड राजस्थान से भिड़ेगा। Back at the MPSC, basketball pool matches continued. Telling us about the slam dunks and hoops is Vigneshwar. At Bhagirathi Stadium, Maharana Pratap Sports College,
In the league matches, men's category, Karnataka has won over Uttarakhand, Delhi has won over Rajasthan, and Punjab has won over Rajasthan. In women's category, Kerala had made a decisive win over Uttar Pradesh, Punjab made a hard-fought win over Uttar Pradesh, Karnataka made a decisive win over Chhattisgarh, as well Kerala made a win over the host Uttarakhand. And coming to the fixtures for tomorrow's league matches, Rajasthan will take on Madhya Pradesh, Punjab will take on Delhi, Uttarakhand will take on Services, and Tamil Nadu will take on Karnataka for the men's category. For women's category, Uttar Pradesh will take on the host Uttarakhand, Karnataka will take on Tamil Nadu, Kerala will take on Punjab. With the league matches getting over by tomorrow, it's going to be a deciding day for knowing who is going to top the point charts and get into semi-finals. Also, it is to be noted, the usual powerhouses will be able to retain their glory as new competitors have raised up to the occasion. We have Tamil Nadu player Srimati Satya here. We won gold in this national games because last time we lost in the semi-finals and we were the bronze medal. So this time 100% we are going for the gold and that is the aim. Also at the MPSC in the Rajat Jayanti Khel Parisar, Dipankar Mishra kept track of two vastly different sports. Here's his report on the intensity of the rugby sevens field and the agility of the squash court. गंगा एथलेटिक्स ग्राउंड पर रग्बी सेवेंस के महिला और पुरुष श्रेणियों में क्वार्टर फाइनल के 4 मुकाबले आज खेले गए। हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने क्रमशः बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड और केरल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हरियाणा की टीम इस प्रतियोगिता में अब तक अपराजेय रही है। हमने बात की हरियाणा के कोच भूपेंद्र से और उनसे उनकी सेमीफाइनल की तैयारियों के बारे में पूछा। बहुत अच्छा खेले लड़के, सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और काफी खुश है सब, और हम कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वी ऑल आर रेडी फॉर टुमारो। सेम हम अपने पैटर्न पे खेल रहे हैं जो हम महीनों से प्रैक्टिस करके आए हैं, उसी पे हम खेल रहे हैं और सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, सब एकदम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं अच्छे से और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सेम परफॉर्मेंस हमारा नेक्स्ट डे भी नेक्स्ट मैचेस के भी ले रहेगा। कल यानी 31 जनवरी को रग्बी सेवेंस के सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे और दोनों श्रेणियों में पदकों का बंटवारा होगा। वहीं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्थित स्क्वैश कोर्ट में स्क्वैश के इंडिविजुअल और टीम श्रेणी के लीग के मुकाबले खेले गए। हमने बात की अपना इंडिविजुअल मुकाबला जीतकर टीम मुकाबले की तैयारी कर रही तमिलनाडु की शमीना नाज से। We've been training for this national games and the training is going on well and here the condition is a bit cold, so we are getting attached to the condition and the coach, so I'm happy with my win today and looking forward for a few more matches. We are second seeded in the teams and we won gold medal last time in the teams. Tamil Nadu won gold, so we are hoping to get a gold in the team event and hopefully I get a medal in the individuals too. स्क्वैश के लीग के मुकाबले कल जारी रहेंगे और 1 और 2 फरवरी को पदकों का निर्धारण होगा। In Haldwani, men's football competition has also kick-started. Pratishtha Jain brings us this report on the goalmouth action. Another thrilling day of football action and fierce competition. Football fever gripped Haldwani as the men's pools matches kicked off at 2 electrifying venues. Delhi stunned defending champion Services with exhilarating 2-1 victory sealed by Kamginze's dramatic goal in dying moments of the match. And that's a goal for Delhi by jersey number 20. I'm so happy that this goal was for winning. Radiated with joy, Captain Mahib. Very happy. It's a good beginning for us. ये गेम जीतना ही बहुत बड़ी मोटिवेशन है टीम के लिए। Later in the afternoon, Kerala triumphed over resilient Manipur, with crowd eagerly anticipating a breakthrough from Manipur. The team fought hard, creating several chances. Manipur's coach Kame Joy expressed disappointment but remained hopeful. Win and lose is part of the game. We also got the chance, not convert the goal, no? At second venue, that is IGISC, Pool A matches were played, where Assam outplayed Goa with 3-2 victory, overcoming a tough challenge as both teams displayed attacking brilliance and kept the crowd on the edges of the seats. Another match between Uttarakhand versus Mizoram was played in the evening. Kho-Kho saw its first World Cup in New Delhi recently. What's going on in the national games in this sleek traditional sport? Suresh Meena was our man on the spot in Haldwani. हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के चौखंबा हॉल में जो खो-खो की 16 टीमें अलग अलग राज्यों से भाग ले रही हैं। इनमें आज 8 टीमें, 4 महिला वर्ग, 4 पुरुष वर्ग के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। महिला खो-खो वर्ग में पश्चिम बंगाल ने घरेलू मैदान पर खेल रही उत्तराखंड की टीम को 28-20 के मुकाबले 8 पॉइंट और 5 मिनट 20 सेकंड के स्पेयर टाइम से पराजित किया।
एज ए कैप्टन वेस्ट बंगाल खो खो टीम रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमने भी अच्छा खेला, वो भी अच्छा खेला, लेकिन जीतना तो एक ही को है टीम को, तो हमने जीत गया। इसी श्रृंखला में पुरुष वर्ग का दूसरा मुकाबला पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया। इसमें पश्चिम बंगाल ने 31, 26 और 5 मिनट 55 सेकंड के स्पेयर टाइम से ये मुकाबला अपने नाम किया। एक और मैच महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच अटैक और डिफेंस पारियों के बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। अंततः महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 34-22 के अंतर से हराकर ये मुकाबला जीत लिया। मेरा नाम गजानन मारुति शेंगार है। मैं महाराष्ट्र टीम से एज ए कैप्टन बात कर रहा हूँ। हम लोग का पहला अटैक का टर्न था, तो हम लोग ने बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन से अटैक किया। सब लोग ने मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा था, कन्वर्गेशन अच्छा हो रहा था, इसकी वजह से हम लोग उनके ज़्यादा विकेट मार सके। और डिफेंस में हम लोग ने हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी से खेले। मतलब विश्व कप खेल चुके हैं, 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके आने से टीम को कितना मनोवैज्ञानिक लाभ मिल रहा है? प्रतीक दादा जो हमारे सीनियर है वो भी है टीम में, और तीन खिलाड़ी है, तो मतलब बहुत मोरल सपोर्ट भी है सबको। उन लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। टीम वर्क जो होता है वो टीम वर्क को अच्छे से ऊपर लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से उनका फ़ायदा हो रहा है हम लोग को। The composite sport of endurance, duathlon, is only meant for the fittest and the bravest. Which duathlete trumped the others? Kavindra Kumar tells us from the Manaskhand Tarantal in Golapar. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी में डी एथलॉन का खेल संपन्न हुआ। डी एथलॉन का खेल क्या है, इस विषय पर कोच मोहम्मद आलम। सारे प्लेयर लाइनअप होके फर्स्ट रनिंग से स्टार्ट होता है, जिसमें रनिंग होता है 2.5 किलोमीटर, 1 लैप करके रनिंग होगा, फिर रनिंग करके फिनिश करके 20 किलोमीटर का 2 लैप होता है। आज महिला और पुरुष दोनों वर्गों के व्यक्तिगत स्पर्धाओं के मुकाबले हुए, जहां पुरुष वर्ग में कुल 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और महिला वर्ग में 26 खिलाड़ियों ने। आज का मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें कुछ ही सेकंड के फासले से गोल्ड मणिपुर के अथवा मैती ने 49 मिनट 29 सेकंड का समय लिया, तो वहीं सर्विसेज के आदर्श ने 49 मिनट 44 सेकंड का। गोल्ड पदक विजेता मैती। Right now, I don't really think that I will want this medal, but I just did, so I'm confused right now. I'm nervous. रजत पदक विजेता मुरलीधरन। पैर में इंजरी भी था, अभी ट्रायथलॉन में इंजरी की वजह से मेरा मेडल चला गया, फिर बहुत सैड फील हो गया था। दोबारा मैं आज सोचा नहीं था दौड़ पाएगा, बट पार्टिसिपेट किया, मेडल मिल गया। कांस्य पदक विजेता सपन पांचाल। मैं गोल्ड ला सकता था पर आई विन ब्रॉन्ज। कहना ये कि बस हार नहीं मानना, आप ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और वही सोच के जाओगे तो आप अपना बेस्ट देके मेडल अचीव कर सकते हो। पुरुष वर्ग के मुकाबले के बाद महिलाओं के व्यक्तिगत स्पर्धाएं संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के आध्यासी ने 56 मिनट 43 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक, तो वहीं महाराष्ट्र की डॉली देवीदास पाटिल ने 57 मिनट 28 सेकंड का समय लेकर रजत पदक। डॉली देवीदास पाटिल। मुझे तो मतलब कि मेडल मिलेगा ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा था, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन था ना, तो अभी सिल्वर मेडल मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आद्यांशी। हार्ड वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा आपको, पर मैं ट्रायथलॉन है मेरा, जिसमें स्विमिंग वीक है, मुझे उसमें गोल्ड मेडल लाना है। And now our journey takes us to the famous tourist town of Rishikesh. Beach handball there is nearing its culmination. Here's Florine Roche and Saubhagya Rath reporting from the Golden Sands. The Sylvan setting on the Shivpuri beach today witnessed a brilliant display of beach handball play in both men's and women's category. All the 4 semi-finals kept the spectators on their toes with a dazzling display of speed, agility, endurance, tactics, and a bit of luck. In the men's category, as expected, Services entered the finals where they will face host Uttarakhand. Services team captain Arjun Lakra spoke to us. बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम फाइनल में पहुंची। पिछली बार भी हमारे जैसे चैंपियन थे, उसको बरकरार रखने के लिए हमने फिर से उसी मोड़ पे आ गए हैं। बहुत एक्साइटेड हैं कि फाइनल खेलने के लिए। पूरी कोशिश रहेगी कि हम गोल्ड लेके जाएं। Services had defeated Uttar Pradesh and underdogs Uttarakhand overcame Rajasthan to book a place in the finals. Uttarakhand captain Atul Kumar. For the very first time, Uttarakhand is reaching the finals in the handball category. So we are very proud and happy. Uttar Pradesh men's team had some consolation as they won the first medal of beach handball by clinching the bronze medal, beating Rajasthan. However, it was the women's handball game that gave goosebumps in the semis and in the fight for the bronze medal. Chhattisgarh women won the bronze, beating a spirited Assam challenge. Earlier in the day, Assam women team stole the show, fighting like hungry wolves in the second semi-finals against Kerala. But finally caved in under pressure in the penalty shootout. Kerala team captain Reshma Krishna shared her experience.
फर्स्ट हाफ वाज वेरी इजी फॉर अस, सेकंड हाफ थोड़ा तो टफ हुआ पर हमने जीत गई. Haryana had already qualified to the finals, beating Chhattisgarh in the first semi-finals today. So it's going to be a fight between Services and Uttarakhand in the men's category and Haryana and Kerala in the women's category for the gold. One of India's traditional favorites, Kabaddi's pool matches are currently on in Haridwar. Manish Bhattacharjee fills us in from the Roshanabad Stadium. Even after being hooked at 17-17 till half-time, Raiders of Uttar Pradesh proved their superiority in neutralizing raids carried out by Chandigarh in the first outing of the second day's play in Pool B of men's category in Kabaddi at Haridwar. However, second half saw a different surge altogether. Chandigarh unleashed do-or-die approach, once again bringing score back to the equal, inflicting multiple fouls on Uttar Pradesh, which at times even saw only 2 players on board from Uttar Pradesh. Resonating with huge audience support, both the teams marched ahead neck to neck, with Chandigarh finally calling the shots, outscored Uttar Pradesh 38-35. Captain Pawan Sehrawat, who is captain Team India as well, acknowledged technical superiority of their team. हम ही बेहतर थे तकनीकी तौर पे, क्योंकि हमारे पास एक डिफेंस की गौरव खत्री जो है बेस्ट डिफेंडर है लीग का, और एनवाईपी में अयान है. मैं खुद एक अच्छा खेल ऑलराउंडर प्लेयर खेल रहा था. तो In the women's outing of Pool B match, though West Bengal initially looked formidable, but within next 10 minutes Rajasthan Divas turned the dice and held the fort, maintaining the lead all through. At whistle, Rajasthan was 49 and West Bengal 23. Captain Manpreet Kaur of Rajasthan called it a lesson from defeat yesterday, which saw them losing against Maharashtra. कल सर हम एक मैच लूज कर गए थे महाराष्ट्र से, उसका हमारा हारने का एक ही कारण था, हमने इनिशिएट नहीं किया. तो आज जैसे हम हार ऐसे पीछे चल रहे थे तो हमने ये कोशिश की भी इनिशिएट करते हैं, जो होगा फिर देखिए, लेकिन इनिशिएट तो करना चाहिए. तो फिर इनिशिएट कर रहा तो फिर हम टैकल करने लग गए, सक्सेस हो गए. Traditional martial arts Kalaripayattu is a spectacle to behold, also taking place in Roshanabad Stadium. Here's what happened in it. Rajiv Ranjan Tiwari. मल्टीपर्पज हॉल पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में कलारीपयट्टू का आज दूसरा और अंतिम दिन. आज कुल 10 इवेंट्स हुए. दिन की शुरुआत काईपोरू गर्ल्स 60 से 75 किलोग्राम वर्ग के इवेंट के साथ हुआ, जिसकी गोल्ड मेडलिस्ट गोवा की भुवनेश्वरी. थैंक यू सो मच. पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आ सकी हूँ. गोवा से मैं अकेली प्लेयर क्वालिफाई हुई हूँ इस बार कलारीपयट नेशनल गेम्स के लिए. हाई किक बिलो 5.6 फीट गर्ल्स की विजेता मध्य प्रदेश की हर्षिता शुक्ला. सर एक्चुअली मैं अभी तक तो ब्रॉन्ज और सिल्वर पे आ रही थी, आज गोल्ड पर आई हूँ तो ज्यादा खुशी हो रही है. वहीं हाई किक एबव 5.6 फीट बॉयज के विजेता मध्य प्रदेश के गौरव डांगी. कंटिन्यू में 3 महीने मेहनत कर रहा था. आज से 5 महीने पहले हमारे सिलेक्शन ट्रायल थे केरला में, जिसमें मेरी कोई प्लेस नहीं थी, 5th प्लेस थी मेरी. क्या मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करके आज गोल्ड पाया. आज कलारीपयट्टू के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड सरकार की माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या भी पहुंची. जिस प्रकार से कलारीपयट्टू पूरी तरीके से मार्शल आर्ट की जननी है, इस इंडिजीनियस गेम को जो है, जो कि अभी वर्तमान में डेमो गेम के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं, बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया है. मेरी शुभकामनाएं हैं. हालांकि 38वें नेशनल गेम्स में कलारीपयट्टू एक डेमो गेम्स के रूप में शामिल है, पर इंडियन कलारीपयट्टू फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी इसके फ्यूचर को लेकर काफी आश्वस्त है. You have chances in Kalaripayattu. Those who are participating in Kalaripayattu, practicing Kalaripayattu will get a good future ahead. और अंत में मेडल्स की बारी. आज कलारीपयट्टू में 36 मेडल्स दांव पर थे, जिनमें से मध्य प्रदेश को 2 गोल्ड, छत्तीसगढ़, केरला और गोवा को 1-1 गोल्ड मेडल मिला. And now with the medals tally, here is Anupam Pathak. पदक तालिका में कर्नाटक पहले स्थान पर है, 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदकों के साथ. मणिपुर ने दमदार उपस्थिति बनाई है दूसरे स्थान पर 6 स्वर्ण और 5 रजत पदकों के साथ. पिछले खेलों का सिरमौर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, 4 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 8 कांस्य पदक. वैसे कुल पदकों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पदक उसी के हैं, 23 पदक. सर्विसेज 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर है, तो मेजबान उत्तराखंड 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदकों के साथ 13वें स्थान पर है. So that was our sporting tour of Uttarakhand for today, a state that has become a sporting pilgrimage for this fortnight as athletes toil under the crisp sun and chilly winds to fulfill their dreams. Join us tomorrow at the same time and on the same frequencies to listen to the next chapter of the story of the 38th National Games. This is Shaurya Chaudhary signing off. Good night and sporty dreams. 38th National Games, Uttarakhand. You just heard our daily highlights of the 38th National Games 2025. This program was produced by Akashvani Central Production Team at Dehradun.